गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेमेशन। व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन Inflammation, a localized physical condition in which part of the body become reddened, swollen, hot, and often painful, especially as a reaction to injury or infection. Inflammation क्या है? ये एक लोकल फिजिकल कंडीशन है और इन बीच के अंदर पर जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो रेड हो जाते हैं या फूल जाते, सूज जाते हैं, गर्म हो जाते हैं और पेनफुल हो जाते हैं। कब? जब स्पेशली एज ए रिएक्शन इंजरी या इन्फेक्शन होता है तब ये बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है। When inflammation happen, chemical from your body, white blood cells enter your blood. Inflammation when inflammation happens, chemical from your body, white blood cells WBC जो है enter your body और tissue to protect your body from invaders. यानी जो चीजें अपने ऊपर हमलावर होती है उसकी प्रोटेक्ट हिफाजत के लिए chemical from your body, white blood cells enter your blood or tissue to protect your body from invaders. हमारी बॉडी की हिफाजत के लिए जो when inflammation happen, chemical from your body, white blood cells enter your blood or tissues to protect your body from invaders. These rises the blood flow to the area of injury or infection. It can cause redness and burn. Some of the chemical cause fluid to leak into your tissues, resulting in swelling. Inflammation refers to your body's process to fighting against things that harm it, like infection, injuries, and toxins. Inflammation refers करता है your body को process fighting against things that harm it, like infections, injuries, and toxins. Is an attempt to heal itself. When something damages your cells, your body release chemicals that trigger a response from your immune system. Possible जो causes inflammation के the most common reasons for chronic inflammation: autoimmune disorders such as lupus, where your body attack healthy tissue. Inflammation के two types है. There are two types of inflammation: acute and chronic. People are most familiar with acute inflammation. This is the redness, warmth, swelling, and pain around tissue and joint that occur in response. सबसे ज्यादा acute से होता है. This is the people are most familiar with acute inflammation. This is the redness, warmth, swelling, and pain around tissue and joints that occur in response to an injury, like when you cut yourself. Acute inflammation is the immediate response. जो acute inflammation होता है ये immediately response करता है. Characterized by the increased movement of plasma and leukocytes, such as neutrophils and macrophages, from the blood into the injury site या tissues. 3,4 from स्टडीज इन नेचुरल प्रोडक्ट्स केमिस्ट्री. ठीक है, जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है ये इमीडिएटली रिस्पॉन्स करता है और इंक्रीज होता है मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा एंड ल्यूकोसाइट सच एज न्यूट्रोफाइल्स. इसमें है रेडनेस, कैलोर यानी कि इंक्रीज हीट होती है, ट्यूमर, स्वेलिंग होती है, डोलर पेन होता है, लॉस ऑफ फंक्शंस होते हैं. फंक्शंस जो है लॉस हो जाते हैं. द फर्स्ट फोर वेर डिस्क्राइब बाय जो फर्स्ट फोर है डिस्क्राइब बाय सेलेसस. द फिफ्थ वाज अ लेटर एडिशन बाय वर्चो इन द 19th सेंचुरी. इसके एग्जाम्पल है इन्फ्लेमेशन की इंक्लूड एक्यूट ब्रोंचिटिस, अ सोर थ्रोट फ्रॉम अ कोल्ड और फ्लू और इन इन्फेक्टेड इनग्रोन ट्राइनल. इसके जो एग्जाम्पल है इसमें क्या है? इंक्लूड एक्यूट ब्रोंचिटिस, सोर थ्रोट फ्रॉम अ कोल्ड और फ्लू और एन इन्फेक्टेड इनग्रोन ट्राइनल. कॉमन साइंस जो है इन्फ्लेमेशन के वो है रेडनेस, पेन होता है एंड टेंडरनेस होता है, स्वेलिंग होता है, स्वेलिंग, बर्म्स और पफनेस होती है, ब्रम्स एट द इंजरी साइट, ब्रीजिंग, स्टिफनेस, लॉस ऑफ मोबिलिटी.
रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन। अब जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो है इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज अ स्लो। जो एक्यूट है ये इमीडिएटली रिएक्ट करता है, और जो क्रॉनिक है ये स्लो है, स्लो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन है, लास्टिंग फॉर अ प्रोलॉन्ग prolonged periods of several months of 2 years। ये महीने से साल तक पर डिपेंड होता है, ये स्लो प्रोसेस होता है, स्लो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन होता है। जनरली द एक्सटेंड एंड इफेक्ट ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, और क्या होता है जनरली एक्सटेंड और इफेक्ट होता है ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन वैरी विद द कॉज ऑफ द इंजरी। और ये किस वजह से होता है, इंजरी की वजह से, कॉज ऑफ इंजरी एंड द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिपेयर एंड ओवरकम द डैमेज। मैनी क्रोनिक डिसीज आर कॉज बाय, जो बहुत सारे क्रोनिक डिसीज होते हैं किस वजह से होते हैं, लिस्ट ऑफ रिस्क, शॉर्ट लिस्ट ऑफ रिस्क बिहेवियर, टोबैको के यूज से, एंड एक्सपोर्ट टू सेकंड हैंड स्मोक, सेकंड हैंड स्मोक की वजह से, पुअर न्यूट्रिएंट्स मींस इंक्लूड डाइट लो इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड हाई इन सोडियम एंड सैचुरेटेड फैट्स, यानी मीन्स पुअर न्यूट्रिएंट्स, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी क्रोनिक डिसीज कॉज होता है, एक्सेसिव अल्कोहल यूजर, अल्कोहल के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से भी होता है। क्रोनिक डिसीज आर, क्रोनिक डिसीज कौन से, कैंसर, हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, डायबिटीज एंड अर्थराइटिस। क्रोनिक जो डिसीज है, क्रोनिक डिसीज कौन कौन से है, कैंसर है, हार्ट डिसीज है, arthritis, क्रोनिक डिसीज कौन से है, कैंसर है, हार्ट डिसीज है, स्ट्रोक है, डायबिटीज एंड एरेथ्राइटिस है।